Mechanical Engineering Society of BIT Sindri is back again with another exciting session of MechaMeet. MechaMeet is a series of insightful sessions with successful engineers with an objective to share valuable knowledge and to answer all your doubts related to academics, careers, interviews, and a lot more. I, Rana Randeep, your host today, welcome you all to the third episode of MechaMeet. Today, we have Mr. Ansul Kumar Mishra sir as our guest personality. Sir has done his BTech in Mechanical Engineering from our very own college, BIK Sindri, and he was part of a 2K17 batch. He's currently working as management trainee in Tata Steel. Good morning, sir. On I feel immense pleasure to welcome you to this online meet. We Very are good looking morning, Rana. forward Very to, good morning. yes, sir. We are looking forward to taking away a lot of learnings from you today. Sure. I'll try to help as much as possible. Go ahead. Okay, sir. Let's start on a bit lighter mode. I request you if you can please tell us a bit about your school life, from where you did your schooling and what kind of student you were, topper or an average guy also. So to begin with my high schooling, I completed my 10th standard from Denobli School, Sijua. It is located in Dhanbad district itself. For my senior secondary, I shifted to DPS Bokaro Steel City. And अगर जानना चाहते हो if I was a brilliant student or not, I don't know. But yeah, I scored very well. I was decent. I was at the top of my class. और बीआईटी से निकलने के बाद भी I was still at the top of my class, if that is what you want to hear. So yeah, I was good at my studies. ऐसा मैं Okay, मानता. okay, sir. After getting from out of school and then preparing for JE and then coming to BIT, uh, in the initial days when you saw all those clubs, formal seniors, and everything, what was your feeling? Were you already यार, prepared for all those things, or was it unexpected? nobody is prepared for all this, to be very honest. No one is prepared, क्योंकि देखो एक तो दूसरे कॉलेजेस में जाते हो एक वाइब डिफरेंट होता है, तो बीआईटी सिंधरी का एटमॉस्फेयर एकदम और डिफरेंट है. प्रिपेयर्ड थे कि नहीं, आई वाज डेफिनेटली नॉट प्रिपेयर्ड. क्लब्स वगैरह काफी थे एंड इनिशियली आई वाज नॉट इंक्लाइंड टू जॉइन एनी ऑफ देम. पहले मैंने अपना समय लिया कि कौन सा क्लब क्या काम करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसका रेपुटेशन क्या है, ठीक है, विल दैट Yes. एड वैल्यू टू माय मेंबरशिप. तो उसके बाद आई मेड द डिसीजन टू जॉइन सम ऑफ देम. एक जगह था मेरे को काफी इंटरेस्ट था उसमें, आई रोट लिटरेरी पीसेस, तो आई वाज एन एक्टिव मेंबर ऑफ सर्जना. Surgeon. या. Yes. Sir, right now the admissions are going on, and very soon we will be having our freshers in the college. Do you have any advice for them from your ex? देखो, एडवाइस ऐसा कुछ है, कुछ खास नहीं है, बट एक जो मैंने फेस किया था आने से पहले कि नोबडी वांट्स टू कम टू बीआईटी. एक होता है दिमाग में, होता है यू आर फ्रेश, 12th तुमने दिया है, जेई तुमने दिया है. किसी किसी लोगों के दिमाग में होता है यार मेरा क्लियर नहीं हुआ, या फिर हो भी जाता है तो देर आर सम रीजंस. मैंने अपने दोस्तों को भी देखा है, फाइनेंशियल रीजन की वजह से वो नहीं जा पाते, या फिर फैमिली रीजंस के कारण नहीं जा पाते. तो वो मन मार करके यहाँ आते हैं. ऐसा नहीं करना, ठीक है, क्योंकि वो जो रिग्रेट होता है वो तुम अगर कॉलेज में लेकर के आओगे तो दैट विल स्टे विथ यू फॉर एवर. तो कॉलेज में एंटर करने से पहले वो रिग्रेट ड्रॉप कर लो, ठीक है. देन कम टू द कॉलेज, एंजॉय टू योर फुलेस्ट. जो करना है करो, लेकिन लिव टू द फुलेस्ट. ये मेरा एक सजेशन रहेगा. एंड कम विद अ हैप्पी फेस, यू विल डू वेरी गुड. Okay, sir. Sir, now let's come to a bit serious part. So ऑल राइट, ऑल राइट. we all know you cracked the PPO, that is the pre-placement offer, which is itself is a great feat. But before that, one needs to get to the internship at Tata Steel, and from there they choose the ones to whom the PPO will be offered. So for the audience, can you please briefly explain the process in short of getting the internship and then get into details about the preparation strategy? श्योर राना. तो देखो, टाटा स्टील के बारे में मेरे को तब पता चला था व्हेन आई वाज इन सेकंड ईयर, ठीक है. फर्स्ट ईयर में उतना कुछ आइडिया होता नहीं है लोगों को. सेकंड ईयर में आने के बाद यू गेट इनटू द वाइब ऑफ योर डिपार्टमेंट. कोर कोर्सेज शुरू हो जाती हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट सेपरेट हो जाते हैं. तो यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग कि हाँ मेरा ऑप्शन कहाँ पे है. तो व्हेन आई वाज इन सेकंड ईयर मेरे को पता चला कि टाटा स्टील कम्स फॉर इंटर्नशिप. उसके बाद यू गेट कन्वर्टेड, योर इंटर्नशिप गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ पीपीओ. तो प्रिपरेशन एज सच मेरा
पूरी तरह से थर्ड ईयर में स्टार्ट हुआ था। सेकंड ईयर में आई वाज हाँ ठीक है, एक बार इसको देखते हैं कर करके, ठीक है। आई वाज नॉट क्वाइट कि हाँ चलो इसी में जाना है। आई हैड अ डिफरेंट गोल। इनफैक्ट आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर गेट एग्जामिनेशन, ठीक है। सेकंड ईयर में आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर गेट एग्जामिनेशन, करीबन 15 से 20 दिन मैंने सीरियसली उसको लिया होगा। उसके बाद फिर देन आई रियलाइज नहीं, उससे भी बड़ी चीजें हैं दुनिया में करने के लिए, ठीक है। तो थर्ड ईयर में आने के बाद आई स्टार्टेड टू फोकस ऑन द कोर्सेज दैट आई हैड डन इन द सेकंड ईयर। सॉम हो गया, टॉम हो गया, थर्मो हो गई, तो उनको पढ़ना स्टार्ट किया। ऐसे थर्ड ईयर में आने के शायद अक्टूबर में कंपनी जनरली आ जाती है, ठीक है। तो उस समय मैंने सब कुछ ऑलमोस्ट लगभग सेकेंड ईयर से लेकर थर्ड ईयर तक का ऑलमोस्ट सारी सब्जेक्ट्स को मैंने टच अप कर रखा था। उसके बाद अक्टूबर में नहीं, हमारा 18 नवंबर को हमारा हुआ था इंटरव्यू, एंड सेम डे रिजल्ट डिक्लेयर हो गई थी 18 नवंबर 2019 को, एंड आई वाज सिलेक्टेड। दैट इज इट। So there was anything written examination was not there. देखो होता क्या है कि देयर आर 3 स्टेप्स, ठीक है। पहली तो रिटन होती है, एवरी कंपनी का नॉर्मल है। तो उसमें भी ज्यादा कुछ सीरियस नहीं होता, बट देयर इज अ लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन, क्वांटिटेटिव सेक्शन, ठीक है, DI LR वो सब चीजें होती है, एंड देयर इज वन टेक्निकल सेक्शन। टेक्निकल सेक्शन में तुमको फोकस करना ही करना है, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम द क्राउड। क्योंकि DI LR इंजीनियर्स का नॉर्मली होता ही ठीक ठाक है। तुम चाहो भी अगर उसको खराब करने का, तो भी तुम सही आंसर करके आओगे, ऐसी चीज है वो। तो टेक्निकल जो होता है, जैसे हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग था, तो उससे करीबन 10 से 15 सवाल थे, ठीक है। एंड वही डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि वेदर यू विल बी गोइंग टू द नेक्स्ट राउंड और नॉट। जो अगला राउंड होता है वो होता है आफ्टर द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आती है। तो दैट हैपेंड ऑन 18th ऑफ नवंबर, एंड ग्रुप डिस्कशन होता है। ग्रुप डिस्कशन में दे गिव यू अ टॉपिक, यू हैव टू स्पीक, जजेस जज करते हैं, देयर आफ्टर अगेन एक शॉर्टलिस्ट प्रिपेयर होती है, और वो फाइनल कैंडिडेट्स कॉल होते हैं इंटरव्यू के लिए। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर है फॉर सिलेक्शन इसमें। Sir, any suggestion for which books should we follow for aptitude, preparation of aptitude and reasoning? एज सच बुक्स देखो, अगर एप्टी के लिए फॉलो करना है ना, तो मेड इजी की जो बुक आती है, ठीक है, एप्टीट्यूड की, जनरल एप्टीट्यूड की, तो यू कैन यूज दैट फॉर गेटिंग इन टच कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इसी से आते हैं, किसी से डायरेक्ट नहीं आते सवाल, ठीक है, ये बात जान लो। क्वेश्चंस उस टाइप के आ सकते हैं, उस बेसिस पे आ सकते हैं, लेकिन यू विल गेट द वाइब कि हाँ इस तरह के सवाल आ सकते हैं। एक तो हो गया मेडिसी का जनरल एप्टी का बुक, RS अग्रवाल के बुक देख सकते हो, एक या दो ही, उससे ज्यादा नहीं। फिर इंडिया बिक्स एक वेबसाइट है, ठीक है, दैट इज अ वेरी फेमस वेबसाइट। उस पर जितने क्वेश्चन सॉल्व कर लो कम है, जितने करोगे उतना आइडिया लगेगा। आई वॉज रेफरिंग टू ओनली दीज थ्री सोर्सेज। इनफैक्ट मैंने सबसे लास्ट में जाकर के अटेम्प्ट किया था मेडिसी की जो एप्टी की जो वर्कबुक है, उसके पहले मैंने इन दोनों को कर लिया था। Yes, sir. Any advices for interview? What do they ask in the interview? देखो यार, इंटरव्यू के ऊपर आने से पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो तुम्हारा रिटर्न होता है, मैंने ऑलरेडी एक बार बोल रखा है, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। अगर तुम चाहते हो कि यू गेट इनटू दिस इंटरव्यू, अब इंटरव्यू में नहीं जाओगे तो सिलेक्शन कैसे होगा? पहले तो रिटर्न क्लियर करना होगा ना। तो रिटर्न Yes. क्लियर करने का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीका है यू फोकस ऑन द बेसिक्स। बड़ा हाई फाई सवाल नहीं होता, लेकिन यू नीड टू नो कि हाँ तुम क्या पढ़ रहे थे, वो तुमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट है कि तुम्हारा जो सिलेबस है एटलीस्ट तुम उसके 90% तुम कवर करके रखो, एटलीस्ट दैट इज द रिक्वायरमेंट। ऐसे एक्सपेक्टेशन तो 100% का होता है, बट 90% मेरे हिसाब से रिकमेंडेड है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद वो जब क्लियर हो जाता है, तो तुम्हारा इंटरव्यू में, टाटा स्टील का इंटरव्यू बाकी कंपनीज के इंटरव्यू से बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है। क्योंकि बाकी जो कंपनीज आती हैं दे मेजरली फोकस ऑन तुम्हारा HR स्किल कैसा है, सॉफ्ट स्किल कैसा है, ठीक है। उनका जो वेटेज होता है 70 से 80% उसी पे होता है। बट जो टाटा स्टील की इंटरव्यू होती है, वो तुम्हारा अगर सॉफ्ट स्किल में तुम अगर थोड़ा कम भी हो, तुम्हारा अगर कॉम्प्रोमाइज भी हो रहा है, लेकिन वो तुम्हारे टेक्निकल स्किल से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, एकदम नहीं करेंगे। वो देखते हैं कि बंदे को कितना आता है, वो कितना पानी में है, उसको कितना पता है, मैकेनिकल उसने पढ़ा है तो कितना पढ़ा है। तो तुम अपना जो कोर्स कर रखे हो बीटेक का, थर्ड ईयर में तुम्हारा इंटरव्यू होता है, तो थर्ड ईयर वो तो एक्सपेक्ट करते हैं कि फोर्थ ईयर यानी कि 7 सेमेस्टर तक के भी कुछ कोर्सेज तुमको आने चाहिए, जैसे RSC हो गया। Yes, इनफैक्ट sir. मेरे इंटरव्यू में तो RSC से 3 या 4 सवाल पूछे गए थे,
ठीक है, वो तो हम 6th सेमेस्टर हमारा 5th सेमेस्टर था, लेकिन उसके बाद भी हमसे आरएसी के 3-4 सवाल पूछे गए थे। इनफैक्ट जो हमारे साथ जो जितने भी कैंडिडेट्स थे, उनसे भी पूछे गए थे। ऐसा नहीं होता तुमसे ये पूछा, तुमसे वो पूछा, सबसे पूछा जाता है, इक्वली पूछा जाता है। तो एक्सपेक्टेशन वो रहता है कि तुम अब कम से कम 7th सेमेस्टर तक की चीज़ों को पढ़ कर के जाओ। नहीं भी पढ़ कर के जाते हो तो ऐसा कोई बुराई नहीं है, वहाँ जाने के बाद यू कैन से कि सॉरी सर आई डू नॉट नो। Yes. बट देयर इज़ एन एक्सपेक्टेशन कि you go there with full preparedness. ठीक है। So does learning the softwares like CAD, CAM or CAE gives you श्योर। benefit? बेनिफिट एज सच देखो, तुम जब रेज्यूमे प्रिपेयर करते हो तो कॉलेज के रेज्यूमे में ऐसा कुछ एक सेक्शन है नहीं स्किल्स का, ठीक है। Yes. टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम टेलिंग यू, तो मैंने अपने सीवी को पूरी तरह से मॉडिफाई किया था, ठीक है। मैं कॉलेज का ही सीवी लेके गया था, मैंने उसको पूरा चेंज कर दिया था, लेकिन एक तरह से कि आई वांटेड टू शो देम कि मेरे को क्या आता है वो जानना जरूरी है उनको, ना कि जो कॉलेज ने फॉर्मेट प्रिपेयर करके दिया है। अगर उस हिसाब से मैं लेकर के जाता तो हो सकता है मैं सेलेक्ट नहीं होता, ठीक है। लेकिन आई ट्राई टू कन्विंस देम कि देखो मेरे को ये आता है, तो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है। रही बात सॉफ्टवेयर की, अगर जिस बंदे को भी आता है यू कैन डेफिनेटली पुट दैट ओवर देयर, ठीक है। डेफिनेटली इट एक्ट्स एज अ प्लस पॉइंट, कोई बुराई नहीं है। अगर बात करोगे पूछने की कि जैसे मान के चलो तुमने लिख दिया कि तुमको एंसेस आता है, ठीक है, या फिर सॉलिड वर्क्स आता है। अगर सामने जो तुम्हारा टेक्निकल पैनल में एक्सपर्ट है, इंटरव्यूई है जो तुम्हारा, वो अगर तुमसे पूछना स्टार्ट कर दे तो यू नीड टू आंसर दैट। ऐसा नहीं है कि लिख करके जा रहे हो बता नहीं पा रहे हो, तभी Yes. लिखो व्हेन यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, ठीक है। एंड Yes. अगर वो पूछना चाह रहे हो कि डज इट एक्ट एज अ बेनिफिट, उसका कुछ बेनिफिट है कि नहीं, श्योर देयर इज अ बेनिफिट, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा बेनिफिट है, देयर इज अ लिटिल बिट बट है। Sir, do you have any advice for the internship, like any advice in such that we should learn any skills or any software that might help in the internship? सिर्फ टाटा स्टील के बारे में बात कर रहे हो या फिर बाकी के बारे में बात कर रहे हो? Tata skills right now. टाटा स्टील में जिनका इंटर्नशिप लग चुका है, ठीक है, मेरे हिसाब से उनको अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है, until and unless they get the letter of internship कि उनका इंटर्नशिप इस तारीख से शुरू होने वाला है। उनका जब प्रोजेक्ट एलोकेट हो जाता है उसके बाद से उनको वरी करने की जरूरत है। और वरी भी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा दिमाग लगाना है, ठीक है। देयर इज अ रिगरस प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस बहुत मतलब टायरिंग होता है, तुमको दिन रात स्टडी करना पड़ता है, उसके बाद जाकर के तुम कुछ वैल्यूएबल लेकर के जाते हो। टॉप मैनेजमेंट के लोग तुम्हारा प्रोग्रेस रिव्यू करते हैं पीरियोडिकली, और फाइनली जो तुम्हारा पैनल देखता है वो भी टॉप मैनेजमेंट का ही होता है, ठीक है। जनरल मैनेजर एंड चीफ लेवल के लोग होते हैं वहां पे। तो दे सी कि लड़के ने क्या किया है, लड़की ने क्या किया है, ठीक है। एडवाइस यही रहेगा कि कीप ब्रशिंग अप योर स्किल्स। अगर कुछ स्किल है तुम्हारे पास, कीप ब्रशिंग देम अप, उसको और अच्छा बनाते जाओ। और अगर जैसा अभी तुम्हारा ट्रेंड चल रहा है, अभी हम लोग इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन 4.0 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ट्राई टू लर्न समथिंग रिलेटेड टू डेटा, ठीक है। Mm. डेटा माइनिंग हो गया, डेटा साइंस हो गया, एनालिटिक्स तो पार्ट एंड पार्सल हो गया है अब जॉब प्रोफाइल का। तो ट्राई टू लर्न दैट, ठीक है। क्योंकि तुम जब वहां जाओगे तो ऐसा नहीं है कि कोर जॉब है तो नहीं, कंप्यूटर पे नहीं बैठेंगे, सॉफ्टवेयर में नहीं यूज करेंगे, प्रोग्रामिंग नहीं आती, ये थोड़ा माइंडसेट हम लोगों को ड्रॉप करना पड़ेगा। तो दिस इज वन सजेशन टू द पीपल हु आर गोइंग फॉर द इंटर्नशिप, यही सेम सजेशन है मेरा। Okay, sir. Sir, अगर टाटा स्टील में ना हो पाता, then what were the other options that you had? The देखो, first time plan. आई हैड अ फ्रेंड इन कॉलेज, ठीक है, अनंत नाम था उसका। वो उसका ना एक बहुत सही था, मेरे को वो जो बोल करके गया था इंटर्न एक मैंने टाटा स्टील के पहले जीएसएल का इंटरव्यू फेस किया था, ठीक है। टाटा स्टील थोड़ी लेट से आई थी, तो देयर वाज एन रूमर था कि पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, देयर इज ऑलवेज दैट कंफ्यूजन। तो उसके पहले जीएसएल आई थी इंटर्नशिप के लिए, पहली बार आई थी पीपीयू देने के लिए शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। Yes, sir. तो आई सैट इन दैट इंटरव्यू और अनंत ने मेरे को ये बोला, हुआ तो भी अच्छा है, ना हुआ तो भी अच्छा है, देयर इज नथिंग टू लूज ओवर हियर, थर्ड ईयर में ही है अभी तक, ठीक है। तो दैट वाज समथिंग दैट आई पिक्ड इट फ्रॉम हिम। तो इनफैक्ट जीएसएल भी हो गया था, बाद में रिजल्ट आया था, उसके बाद जीएसएल का रिजल्ट आया था, तो जीएसएल में भी हमारा हो चुका था। 3 या 4 लोग थे। टाटा स्टील का रिजल्ट आने के बाद उसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। तो इफ यू आस्क मी कि अगर टाटा स्टील नहीं होता तो क्या करते, फोर्थ ईयर था, फाइनल ईयर था। ऐसा नहीं है कि देयर इज अ डर्थ ऑफ कंपनीज, कंपनीज आती हैं। हमारे टाइम पे देयर वाज अ कंफ्यूजन क्योंकि कोविड चल रहा था, रिग्रेशन का माहौल था, ठीक है।
कंपनीज नहीं आ रही थी, दे वर ट्राइंग टू पुल बैक, जितना ऑफर्स दे रखे थे वो भी रिग्रेस कर रहे थे लोग, ठीक है। ऐसे ही इकोनॉमिक रिसेशन का माहौल चल रहा था, तो देयर वाज अ दिक्कत कि हाँ ठीक है क्या होगा। तो एज अ बैकअप आई हैड थॉट कि अगर कुछ नहीं होता है, ठीक है, तो आई विल ट्राई टू सी कि कहीं प्लेसमेंट लगता है कि नहीं, नहीं तो फिर या तो ईएससी या तो फिर गेट, दैट वाज द टॉप 3 ऑप्शंस दैट आई हैड इन माइंड। Okay, sir. Okay, sir. Moving ahead now, we are going to take some questions from the students of BIT Sindri who have asked on our social media handles. Sure, sure. So right now, sir, the vocational training is like hot topic among the second year students. Everyone is talking about that. So most of the questions are from that only. So Ronak Singh has asked, sir, what is the procedure of applying project-based vocational training at Tata Steel? प्रोजेक्ट बेस्ड वीटी करना चाहते हैं रौनक जी ना, तो Yes, sir. टाटा प्रशिक्षण बोल करके एक विंडो ओपन होती है, ठीक है। आपको Yes. किसी का रेफरल लेना पड़ता है, उसके बाद आप एक प्रोजेक्ट बेस्ड इंटर्नशिप कर पाओगे टाटा स्टील में, बट दैट इज अनपेड इंटर्नशिप, ठीक है। इट इज जस्ट डन फॉर द सेक ऑफ लर्निंग। आपको बहुत अच्छा इंडस्ट्रियल एक्सपोजर गेन करना है, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स फेस करने हैं, तो यू कैन गो फॉर अ वोकेशनल ट्रेनिंग इन टाटा स्टील थ्रू टाटा प्रशिक्षण, ठीक है। Okay, sir. So now there is Kirti Kumari. She asked, sir, some vocational trainings are paid, some are unpaid. So does money really impact the training or not? Like the value of अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। देखो जैसे कोर कंपनीज कुछ एक हो गई, वो थोड़ा बहुत चार्ज करती हैं, ठीक है, रेप्यूटेड कोर कंपनीज, ठीक है। आई विल नॉट बी नेमिंग देम ड्यू टू सम रीजंस दैट आर वेल नोन, बट कुछ कंपनीज पैसा चार्ज करती हैं, पीएसयूज भी मनी चार्ज करती हैं स्टूडेंट से, ठीक है, आपको पता होगा। बट ऐसा कुछ नहीं है कि देयर द क्वालिटी ऑफ द ट्रेनिंग गेट्स इम्पैक्टेड, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ऑब्जर्वेशन ट्रेनिंग करते हो तो भी आपको वैसा ही फील आता है, प्रोजेक्ट ट्रेनिंग करते हो तो भी आपको वैसा ही फील आता है। देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल, आई थिंक। इनफैक्ट मैंने 2 वीटी किया था, ठीक है, और दोनों मैंने पीएसयू से ही किए थे, तो आई डिड नॉट फेस एनी काइंड ऑफ अ डिफरेंस। एक हमारा अनपेड था और एक मैंने पैसा दिया था उसमें, ठीक है, दे चार्ज सम अमाउंट, बट इट वाज वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस ओवरऑल, क्योंकि तुमको जो एज अ कॉलेज स्टूडेंट नहीं मालूम रहता, वो तुम वहां जाकर के अगर सीख रहे हो तो दैट अमाउंट इज क्वाइट मीगर। देख करके अगर सीख रहे हो तो दैट इज वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट एज कम्पेयर टू द लर्निंग्स दैट यू डेराइव फ्रॉम दैट पीरियड ऑफ ट्रेनिंग, वो बहुत अनमैचेबल होता है। Sir, Anand Kumar has asked, sir, does doing VT from any reputed organization play a significant role in placement interviews? रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कुछ नहीं होता यार, ठीक है, वीटी के Yes, टाइम sir. पे तो एटलीस्ट नहीं होता, क्योंकि तुम एक सेकंड ईयर के स्टूडेंट होते हो, सेकंड ईयर कंप्लीट करा होता है तुमने, यू गो फॉर अ ट्रेनिंग, तुमको भी कुछ आइडिया होता नहीं खासली क्या होना है वहां पे। जो ट्रेनिंग करा रहे होते हैं वो भी बहुत ज्यादा सीरियसली लेते नहीं है, क्योंकि तुम एक सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो, ठीक है। तो क्वालिटी और प्रेफरेंस अगर देखा जाए कि हाँ तुमने एक्स जगह से वीटी किया है तो यू विल बी गेटिंग अ प्रेफरेंस, या वाई जगह से किया है तो तुमको प्रेफरेंस नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तुम्हारा जब ट्रेनिंग कंप्लीट होता है तो हर जगह पे एक रिपोर्ट मांगा जाता है कि तुमने क्या सीखा। कई लोग तो प्रिंट करा के दे देते हैं, कुछ भी साइबर कैफे में गए, 100 रुपए खर्च किए, वहां से 100 पेजेस की पीडीएफ ला करके दे दिया, ठीक है। कई लोग होते हैं कि वहां पे डेली जाकर के एक नोटपैड में लिखते हैं, आज मैंने ये देखा, आज मैंने ये सीखा, वहां पे ये मशीन दिखी, उसका वर्किंग ऐसा होता है, उसमें ये कॉमन मेंटेनेंस प्रॉब्लम्स है, उसमें कॉमन ये दिक्कतें आती हैं। तो दे गो देयर, दे नोट डाउन, उसके बाद लास्ट में जब उनसे रिपोर्ट मांगा जाता है तो वो सारी पॉइंट्स वो लिख करके जाते हैं, ना कि वो साइबर कैफे वाली। तो डिफरेंस क्या है कि वो जो साइबर कैफे वाले लिख करके जाते हैं वो एक बार भी पलट के भी नहीं देखते हैं, वो बस कवर पेज लगाते हैं कि मैंने, मेरा नाम एक्स वाई जेड है, मैंने यहाँ से वीटी की थी। और जिस बंदे ने पूरा 1 महीना जो वीटी होता है उसमें नोट करके वो जो ले जाता है, उससे पूछो, उसको सारा नॉलेज होता है, ठीक है, Sir. उसको Yes, sir. सब कुछ पता होता है। तो अगर ये पूछोगे ना मेरे से कि सर मैंने इस जगह से रेप्यूटेड जगह से नहीं किया मैंने, तो मेरे को प्रेफरेंस नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब इंटरव्यू फेस करने जाते हो, चाहे तुम्हारा पीपीओ का इंटरव्यू होता है या फिर तुम्हारा फाइनल ईयर का इंटरव्यू होता है, तुमसे जो पहला सवाल या तीसरा सवाल होता है जनरली कि तुमने वीटी कहाँ से करी है, Yes, ठीक है। sir. उसके बाद जो फॉलो अप क्वेश्चन होता है कि क्या सीखा वहां पे, क्या किया वहां पे। और लर्निंग ले सकते हो उससे, जैसे मान के चलो यू डू योर वीटी इन अ स्टील कंपनी, ठीक है, और एक स्टील कंपनी ही आती है तुम्हारा इंटरव्यू लेने के लिए कैंपस रिक्रूटमेंट के दौरान। तो व्हाट यू कैन डू इज कि तुमने वहां जो देखा, तुम उस चीज को आराम से को रिलेट कर सकते हो अपने इंटरव्यू में,
कि सर मैंने ऐसा देखा था, आई होप कि वहाँ आपके यहाँ जाने के बाद मेरे को ऐसा देखने के लिए मिले। Yes. ठीक है? शो अ पॉजिटिव एटीट्यूड, शो अ लर्निंग एटीट्यूड, उससे ज़्यादा आई डोंट थिंक कि कुछ मैटर करता है वीटी के दौरान। Okay, sir. So now this is sort of my personal question. Like, या रणदीप, what is the yes, sir. What is the best time to do a VT? And is there a requirement of any prior knowledge? Like, should we study prior to applying for VT or not? देखो क्वेश्चन तुम्हारा 2 पार्ट में है, तो पहला पार्ट का आंसर ऐसा रहेगा, व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू डू वीटी? Yes, sir. Like in which ये ऐसी semester? चीज़ है, वीटी ऐसी चीज़ है ना, जब जब तुम करने के लिए जाते हो तो यू आर गोइंग टू लर्न समथिंग, क्योंकि उसके नाम में ही ट्रेनिंग लिखा हुआ है। ठीक है? Yes, sir. ट्रेनिंग तब लिया जाता है जब तुमको कुछ नहीं आ रहा होता। ठीक है? या फिर कुछ नया सीखना चाह रहे हो। तो मेरे हिसाब से जो एक रॉ ब्रेन होता है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का, वो होता है सेकंड ईयर के बाद ही। ठीक है? जो बेसिक कोर कोर्सेज़ होते हैं मैकेनिकल के फील्ड में एटलीस्ट, वो मैक्सिमम चीज़ें इंट्रोड्यूस हो जाती हैं 3rd और 4th सेमेस्टर में। फॉर एग्ज़ाम्पल सॉम, टॉम, थर्मो, ठीक है? Yes, sir. एटलीस्ट ये 3 जो बेसिक कोर्सेज़ हैं, ये इंट्रोड्यूस हो जाती है 3rd और 4th सेमेस्टर मिला करके। कुछ लोग तो मशीन डिज़ाइन भी कर के जाते हैं। ठीक है Yes, कि sir. नया कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो अगर तुम ये बेसिक चीज़ें सीख करके जा रहे हो, एक प्री-रिक्विज़िट चीज़ लेकर के जा रहे हो, तो मेरे हिसाब से द एंड ऑफ द 4th सेमेस्टर इज़ द बेस्ट टाइम टू डू अ वीटी। मान के चलो कि यू कुड नॉट डू दैट, तो एनी Yes, अपॉर्च्युनिटी इज़ द बेस्ट अपॉर्च्युनिटी टू लर्न। 4th सेमेस्टर के बाद भी तुम अगर 5th सेमेस्टर के ब्रेक में करना चाहते हो, दैट इज़ आल्सो अ गुड पॉइंट, लेकिन पॉइंट ये है कि जितना पहले कर लो, ठीक है? क्योंकि 3rd ईयर में यू नीड टू सेटल ऑन समथिंग कि हाँ, अब ये चुन लिया है तो ये करना है। ठीक yes, है? ऐसा नहीं है कि 5th सेमेस्टर पार हो गया तो वीटी ही करे जा रहे हैं, 6th सेमेस्टर पार हो गया अभी तक वीटी ही किए जा रहे हैं। फाइनल जब आ गया फाइनल ईयर में, पता नहीं यार चूज़ ही नहीं किया कि किस करियर में जाना था, कौन सा इंडस्ट्री चूज़ करना था, ये अब क्लूलेस हो गए। ठीक है? yes, वो नहीं होना चाहिए। हैव सम क्लैरिटी इन माइंड कि क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, कितना फ़ायदा मिलने वाला है। प्रायर नॉलेज ना 2 चीज़ों में मैटर करता है, इंटर्नशिप में ज़्यादा मैटर करता है, ट्रेनिंग में कम। last question will be taking. This is from Kaustik Visakarma. He is asking, sir, since you were a member of the esteemed media body, Come Magazine, Sarjana, हुँ, हुँ, हुँ। what were the हुँ, हुँ। values does it added to you that help you in the personality development? Also, if you could पर्सनैलिटी share डेवलपमेंट। with us your experience being involved in it. हुँ। सर्जना काइंड ऑफ होल्ड्स अ वेरी स्पेशल प्लेस फॉर मी। ये तो मैं पहले बोल दूंगा, तो हो सकता है मेरा आंसर बायस्ड हो, बिकॉज आई एम वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ सर्जना एंड हाउ दैट एडेड टू माय ओवरऑल पर्सनैलिटी। ठीक है, Personality, प्लेस। तो अगर पर्सनैलिटी की बात करो तो आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, यू कैन इजिली सी। ठीक है, yes, sir. आई कैन टॉक विथ यू वेरी वेल एटलीस्ट। ठीक है, कैंपस इंटरव्यू में जब तुम जाते हो तो टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ तुम्हारा प्रेजेंटेशन, तुम्हारा सॉफ्ट स्किल, सब कुछ दिखा जाता है। सर्जना में एटलीस्ट वो चीज़ पीरियोडिकली होता था, हर वीक एक ग्रुप डिस्कशन होता था, एक पर्सनल फीडबैक होता था। इनफैक्ट तुम्हारे सीनियर्स अगर कुछ गलती कर रहे हैं तो भी तुम उनको फीडबैक दे सकते हो कि सर आप ये गलत कर रहे थे, आई थिंक आपने पिछली बार ये बताया था, आप आज खुद ये मिस्टेक कर रहे हो, तो यू शुड इम्प्रूव। Yes, तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो लेना होता है, सर्जना इज द बेस्ट प्लेस फॉर मी एज फार एज आई नो। तो दैट गिव मी समथिंग। तुम इंडस्ट्री में जाते हो सकता है तुम्हारा बॉस तुमको क्रिटिसाइज कर रहा हो, तुम्हारा सुपीरियर तुमको क्रिटिसाइज कर रहा हो, yes, क्रिप नहीं करना है, टेक दैट एज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी एंड मूव अहेड, सुधार की कोशिश करो। ठीक है, ये yes, था sir. मेरा लर्निंग, मेजर लर्निंग फ्रॉम सर्जना। Okay, sir. So thank you, sir. Thank you so much थैंक यू। for your valuable time and guiding us through the meet. एकदम एकदम एकदम। Sir, at थैंक last, यू। yes, sir. Last May, if you have some advice for the 2K19 and 2K20 batch students, you have. श्योर। 2K20 से स्टार्ट करना चाहूंगा कि अभी वो सेकेंड ईयर में होंगे ना। Yes, sir. We are in second. सेकेंड ईयर में होंगे तो काफी रॉ हो तुम लोग अभी तक कुछ खास शेप नहीं पकड़ते लोग सेकंड ईयर के बाद तक। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स में होता क्या है ना कि एक बार आ जाते हो तो उनको लगता है अरे भाई अब तो हो गई, लाइफ सेट है, कुछ ना कुछ कर लेंगे, XYZ अमाउंट की भी सैलरी वाली जॉब लग जाएगी, CTC लग जाएगी, जिंदगी सेटल है। वो मेंटालिटी से बाहर निकलो। ठीक है, और खासकर कि सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स जो क्रिब कर रहे होते हैं फर्स्ट ईयर से कि यार हम कहाँ फंस गए, यहाँ तो कुछ नहीं होता, ये तो जंगल है, यहाँ पे कुछ ना फेस्ट होता है, ना कोई आता है, ना कुछ परमिशन मिलता है करने के लिए, धनबाद भी जाना पड़ता है, यहाँ पे 30 किलोमीटर दूर है वो भी। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, रोने के लिए काफी चीजें हैं, कम पड़ जाएंगी।
ठीक है। Yes, sir. लेकिन जब यहाँ से बाहर निकलोगे ना तो मालूम चलता कुछ खास अंतर नहीं था तुम लोग में और बाहर के लोगों में, ठीक है। बस फर्क Yes, इतना sir. था कि उनके पास जो माहौल था वो बड़ा सही था, तो उनको रोने का मौका नहीं मिला। वो उस पे फोकस करते चले गए जिन पे करना था और तुम रोते रह गए। तो डोंट डू दैट। तुम सेकंड ईयर में हो, एक चीज को उठाओ। फर्स्ट ईयर होता है एक्सप्लोर करने के लिए। लेट मी टेल यू, फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स जितने भी फ्रेशर्स आ रहे हैं अभी, उनका मेरा यही एडवाइस है कि एक्सप्लोर द बेस्ट। अभी फर्स्ट ईयर का जो समय होता है, जितना एक्सप्लोर कर पाओ सब कुछ में। तो मैकेनिकल में तुम कोड करके देखो क्या प्रॉब्लम है, हो सकता है वहां चले Yes, जाओ। तो एक्सप्लोर मैक्सिमम इन योर फर्स्ट ईयर। sir. सेकेंड ईयर में उस पर फाइनलाइज करो, अपने स्किल्स को ब्रश अप करो। डोंट नेग्लेक्ट योर स्टडीज, लेकिन अपने जो जिसको चूज किया है उसको ब्रश अप करते चलो। एंड थर्ड ईयर में इवेंचुअली ट्राई टू फाइंड आउट अपॉर्चुनिटीज की कहाँ जा सकते हो, ठीक है। रही बात जो 2K19 वाले स्टूडेंट्स हैं जो थर्ड ईयर में हैं, Yes, ठीक है, sir. उनका टाइम आ चुका है थोड़ा सीरियसनेस पकड़ने का। फिफ्थ सेमेस्टर तक मस्ती चलती है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन सिक्स सेमेस्टर में एंटर करने समय थोड़ा बहुत सीरियसनेस दिखाना पड़ता है कोर्सेज के प्रति, डिग्री के प्रति, और अपना जनरल लाइफ का जो एटीट्यूड होता है वो भी थोड़ा सीरियस कर लो। ऐसा नहीं है कॉलेज तो नहीं आएगा दोबारा, एंजॉय करते रहो, लेकिन थोड़ा सीरियसनेस बनता है, ठीक है। कॉलेज से जब बाहर निकलोगे साथ में आईआईटी वाले लोग काम करते हैं, एनआईटी वाले लोग काम करते हैं, तो थोड़ा बहुत एक, क्या बोलूं उसको, कि एक लड़के को एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है कि यार ये तो आईआईटी से है, इसको बहुत ज्यादा Yes, आता होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमको भी वो चीज आ सकता है, इनफैक्ट और अच्छे तरीके से आ सकता है। बस वो मेंटालिटी ड्रॉप करोगे तुम बीआईटी से हो। इनफैक्ट बीआईटी वाले तो बोलते हैं ना सेकंड टू नन, सेकंड टू नन, yes, sir. ठीक है। तो उस चीज को एक्चुअली सिर्फ बोलना नहीं है, करके भी दिखाओ, ठीक है। Yes, और तुम किसी से कम नहीं। इनफैक्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग सोसाइटी तो इट इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। अभिनव नहीं होता अगर उस समय, तो आई डोंट नो कि ये रिवाइव कैसे होता, एक्सक्यूज मी, अभिनव नहीं होता तो कैसे रिवाइव होता, आई डोंट नो। और वो बहुत अच्छा काम किया इसको खड़ा कर करके। इट इज अ वेरी नाइस प्लेटफॉर्म फॉर पीपल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एज वेल एज अदर ब्रांचेस ऑफ जो बीआईटी में है, ठीक है। yes, तो उनको यही और सजेशन है कि जितना भी पॉसिबिलिटी है कॉलेज, एवरी प्रोफेसर एट एमईडी इज वेरी वेरी हेल्पफुल, ठीक है। चाहे तुमको अपना फ्यूचर के लेकर के हो, चाहे तुमको अगर समझ में नहीं आ रहा कि सर मेरे को, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना, सेकंड ईयर में कुछ दिमाग नहीं लगाया, थर्ड ईयर में आके कंफ्यूज हो जाते हैं। सर गेट yes, करें, sir. सर कैट में जाएं, सर एमबीए कर लें, बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। सीनियर से कांटेक्ट करते हैं, सीनियर्स खुद कंफ्यूज हैं, वो किससे कांटेक्ट करें। तो उस समय तुम्हारे जो प्रोफेसर्स हैं दे आर द बेस्ट रेस्क्यू पॉइंट्स, उनसे जाकर के कांटेक्ट करो, ठीक है। उनसे जाके बात करो। नहीं होता है इफ दे आर, एक एज गैप सा फीलिंग आता है, तो देन कांटेक्ट योर अलमनस, ठीक है। अपने अलमनस से बात करो, दे आर द बेस्ट पीपल टू गाइड यू रिगार्डिंग दैट, ठीक है। इतना ही मेरा सजेशन रहेगा, प्रवचन देना नहीं है, ठीक है। यू ऑल गाइज विल डू वेरी वेल, आई एम वेरी वेरी श्योर अबाउट दैट, ठीक है। बस कीप द मोमेंटम गोइंग, कीप द टेम्पो गोइंग, रुकना नहीं है, ऐसा मान करके चलो। बाकी तुम लोग बहुत अच्छा करोगे। माय वेरी वेरी बेस्ट विशेस टू यू ऑल, ठीक है। Thank you, sir. राइट टैलेंटेड ग्रुप ऑफ पीपल। थैंक यू राना, Thank you थैंक so यू। much, sir. Thank you so much. It was a great talk, sir. And we will try to प्लेजर एज do वेल, our best. माय Uh, प्लेजर एज वेल, थैंक यू सो मच। Sir, now I'd like to call my batchmate, Shreyas Kumar Taha, to present a slight token of love for you, to you. एकदम एकदम, श्योर Yes, श्योर। sir. Yes. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर Thank, शोइंग ऑल दिस लव। थैंक यू श्रेयस।